ओम शांति। आज के बाबार 24/7/2020 मुरली। आज के बाबार मुरलिर विशेष पॉइंट, बाबा ज्ञानेर सागर एसेছেন আমাদেরকে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিয়ে আমাদের ঝুলি ভরতে। তো বাবা বলছেন যে আমি যা সত্য জ্ঞান তোমাকে শোনাচ্ছি এটাই হচ্ছে আসল জ্ঞান রত্ন। তো এই জ্ঞান রত্ন বাবা ছাড়া আর আমাদেরকে কেউ দিতে পারবে না। তো আমাদের কাছে এই জ্ঞান রত্নের মূল্য যেন সব সময় উঁচু থাকে, আমরা একটাও জ্ঞান রত্ন যেন মিস না করি। বাবা আজকে জিজ্ঞেস করছেন যে আত্মার মূল্য কিভাবে কমে যায়। যেমন সোনার মূল্য, যদি সোনাতে খাদ পড়ে যায় তাহলে সোনার মূল্য কমে যাবে। তো ঠিক সেরকম আত্মার মূল্য কি করে কমে গেল? তো বাবা উত্তর দিচ্ছেন যে তোমাদের আত্মারূপী সোনার মধ্যে যখন 5টা বিকারের খাদ পড়ে যাচ্ছে তখনই আত্মার মূল্য কমে যাচ্ছে। তো যেমন সোনা যেমন থাকবে তো গহনাও সেরকম তৈরি হবে। তো বাবা বলছেন যদি আত্মা শুদ্ধ পবিত্র না থাকে তাহলে শরীর তুমি শুদ্ধ পবিত্র নিরোগী কাঞ্চন কায়া কী করে পাবে? তাই আত্মারূপী সোনা থেকে বিকারের খাদ বের করতে হবে, তবেই তুমি সত্যযুগে আত্মাও সুন্দর এবং শরীররূপী গহনাও সুন্দর পাবে। তাই বাবা বলছেন খুব তাড়াতাড়ি তুমি বিকর্ম বিনাশ করো, আমাকে যোগ করে তুমি তোমার বিকর্মকে তাড়াতাড়ি বিনাশ করো, তখন তোমার আত্মা পূর্ণ পবিত্র হবে আর তুমি তাড়াতাড়ি পরমধাম যাবে। তারপরে সত্যযুগে তাড়াতাড়ি এসে তোমার দেবতার মতন জন্ম হবে। তো এমন কি যোগ আমরা লাগাবো যাতে আমরা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের 63 জন্মের যে বিকর্মের খাদ আত্মার মধ্যে আছে সেটাকে আমরা বিনাশ করতে পারবো। তো সেই যোগটাও খুব শক্তিশালী হওয়া দরকার, খুব পাওয়ারফুল হওয়া দরকার। তো চলুন আমরা কিছুক্ষণ বাবার সঙ্গে যোগ লাগাই। কেন বাবা বারবার বলেন যে আমি পরমধামে যে স্বরূপে আছি, আমি জ্যোতির্বিন্দু স্বরূপে। তো যখন বাচ্চারা নিজেকে আত্মা ভেবে আমার সেই পরম জ্যোতির্বিন্দু স্বরূপকে মনরূপী নেত্র দ্বারা দেখে আর নিজেকেও আত্মা ভেবে আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়, তখন তার বিকর্ম খুব তাড়াতাড়ি বিনাশ হয়। তো এখন আমরা কিছুক্ষণ নিজেকে একদম আত্মা ভেবে আমরা বুদ্ধিরূপী বিমানে বসে পরমধাম চলে যাব। আর জ্ঞান সূর্য শিব বাবা যিনি পরম জ্যোতির্বিন্দু, ওনাকে সেই স্বরূপে আমরা দেখব আর নিজেকেও আমরা ভাববো যে আমি আত্মা বিন্দু বাবার সর্বশক্তির কিরণের মাঝখানে আমি বাবার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছি। আর এইভাবে যোগ লাগালে আমরা পূর্ণ পবিত্রতাকে ধারণ করব আর আত্মার বিকর্ম বাবার সর্বশক্তির কিরণে তাড়াতাড়ি ভস্ম হয়ে যাবে। আমরা এখন কিছুক্ষণ বাবার যথার্থ স্বরূপে বাবাকে স্মরণ করব। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते वह समझाते हैं, यह ज्ञान है।
ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। आज के प्रश्न, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मार मूल्य की करे कमे जाच्छे? उत्तर, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। तो आत्मा जे अरिजिनाली एकदम पियोर खाँटी सोनार मतन, किन्तु तार मध्य जखन अपवित्रता बा विकारेर खाद पड़े जाए तखन आत्मार मूल्य कमे जाए। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं। बलछे एखन सब आत्माई तमो प्रधान हो गेछे, कारोई कोनो मूल्य नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। एखन जोग द्वारा आमादेर आत्मा और शरीर दुटोई मूल्यवान होच्छे। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। आमरा कत सुंदर खुशी हो जाए जे आमादेर मनेर द्वारे रोज सकाले के आसे, बाबा आसेन। ताई भक्ति मार्गे एकटा गान आछे, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियाँ भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। बाबा बोलছেন अनेक समय ब्रह्मा बाबार मध्य शिव बाबा एसे जान किन्तु किछु बोलेन ना, बाच्चादेरके दृष्टि देन एकदम साइलेंसे। तखन बाच्चारा भाबছেন जे शिव बाबा तो एसे गेছেন, ताहले बाबा केन किछु कथा बोलছেন ना। तो बाबा बोलছেন जे अनेक समय आमी बाच्चादेरके दृष्टि दिई बा साइलेंसे बाबा बाच्चादेर मध्य शक्ति भरी, तो ऐसे ऐसे बाबा कथा बोलेन ना। तो यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। तो बोलছে যখন তোমরা দেখছো যে বাবা কিছু বলছেন না, বাবা দৃষ্টি দিচ্ছেন বা আমাদের মধ্যে শক্তি ভরছেন, তো তোমরাও সাইলেন্সে বসে বাবাকে याद करो। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे, तो बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने। बाबा बोलছেন बोलते হবে ना, बाबा तो एसेছেনই তোমাদেরকে ज्ञान रत्न देवार जन्ने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो। बाबा बार बार बोलছেন बच्चे निजेके आत्मा भावो, बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ ना। बाप कहते इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बोलছেন যখন বাবা ড্রামার চক্র বোঝাচ্ছেন, সিঁড়ি বোঝাচ্ছেন, তো এটাও বাবার याद प्लस बाबार एटा ज्ञान। तो बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान ही कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, माने बाबार मुख थेके जा बेरोबे सेटाई ज्ञान। तो यह सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं यह रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो, तुम पवित्र आए थे फिर पवित्र होकर ही जाना है। बाबा बोलছে এটাই ড্রামার বিধান যে তুমি সম্পূর্ণ পবিত্র অবস্থায় এসেছিলে, আবার তোমাকে পূর্ণ পবিত্র অবস্থায় যেতে হবে।
कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। अच्छे बाबा থেকে পুরো বর্ষা আমরা তখন পাবো যখন আত্মা পুরো শতপ্রধান হয়ে যাবে যোগ বল দ্বারা। यह अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए। বলছে এসব কত মূল্যবান পয়েন্ট, তুমি নোট করতে থাকো। आत्मा में ही धारणा होती है। यह शरीर तो आर्गन्स है जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। বলছে তোমার আত্মার মধ্যে ভালো বা মন্দ যা সংস্কার আছে এটা আত্মার মধ্যেই আছে, এটা সবসময় মনে রাখো। সংস্কার শরীরের মধ্যে রেকর্ড নয়, সেটা আত্মার মধ্যে আছে। তো বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন, যেমন আমার আত্মার মধ্যে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান ভরা আছে, তাই আমাকে নলেজফুল বলা হয়। তো আমার তো শরীর নেই, তো আমি আত্মাই তো আছি, तो निश्चय हमारा आत्मार मध्य ही पूरा ज्ञान भरा আছে। तो बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी हमको वापस बाबा के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहाँ जा न सके। বলছে आत्मार मध्य जे विकारेर मलिनता एसे गेছে, तो से मलिन आत्मा की करे ऊपरे जावे, ताई तुम्हाके पूर्ण पवित्र होते हवे। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा। যেমন একটা গাছে ফল যখন পেকে যায় তো অটোমেটিক গাছের আধার ছেড়ে দেয়, সেরকম যখন আমাদের আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবে তখন অটোমেটিক এই শরীর ছেড়ে দেবে। तो पवित्र शरीर तो यहाँ मिल न सके, यह पुरानी जुत्ती है। বলছে আবার তুমি पवित्र शरीर तो এখানে পাবে না। यह पुरानी जुत्ती है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। এই শরীর এখন তোমার পুরনো জুতো, জর্জরীভূত রোগগ্রস্ত, তো এই শরীর থেকেও তোমার বৈরাগ্য আসা উচিত। आत्मा को पवित्र बन फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। बाबा बोलছেন এখনকার সরকারও বলে যে বেশি ভারী ভারী গহনা পরে রাস্তাঘাটে না বেরোনোই উচিত, হালকা জেওয়ার পরতে হবে, যার मूल्य कम থাকবে, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई ভ্যালু নেই है। বলছে আসল সোনা 24 ক্যারেট, সেখান থেকে এখন 9 ক্যারেটে পৌঁছে গেছে, তো বলছে কোনো মূল্যই নেই। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान और कोई दे न सके। बाप ही कहते हैं माँ में कम याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगे, वह तो देहधारी है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद ना करो। अभी तुम समझते हो फिर समझाना है। বলছে সমস্ত জ্ঞানের পয়েন্ট নিজে বোঝো, তারপরে অপরকে বোঝাও। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं।
অলৌকিক বাপ অলৌকিক বাচ্চে। বাবা বলছেন যে শিব বাবা তো আমাদের দেহের পিতা নয়, উনি পারলৌকিক পিতা। তো এখন ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী সন্তান আমরা যে হলাম, তো আমাদের এটা অলৌকিক জন্ম হলো। अलौकिक बाप अलौकिक बच्चे, लौकिक पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तो এই দুনিয়াতে আমরা যে দেহ সম্বন্ধের মধ্যে আছি এটাকে লৌকিক বলা হয়, परमपिता परमात्मा बाबा के पारलौकिक बोला है और ब्रह्मा बाबा के अलौकिक पिता बोला हवे। तो तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है, बाप तुमको एडाप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है, अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। बाबा बोलছেন যে তোমরা সবাইকে এটা ভালো করে বুঝিয়ে দাও যে ব্রহ্মা কুমারীদের ছাড়া স্বর্গের আসল রাস্তা কেউ দেখাতে পারবে না বা স্বর্গের মালিক কেউ বানাতে পারবে না। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। বলছে পুরো যদি যোগ না লাগাও তাহলে বিকারের খাদ আত্মার মধ্যে থেকেই যাবে। पवित्र बन नहीं सकेंगे फिर सजाएं खानी पड़ेगी। এবার যদি পূর্ণ পবিত্র না হও তাহলে ধর্মরাজের শাস্তি খেতে হবে। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। बाबा बोलছেন যে এতদিন আমরা নিজেকে দেহ দেখতে অভ্যস্ত, তো নিজেকে আত্মা দেখা এটা একটু কঠিন তো সবারই মনে হয়। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। যোগের সময় তাও নিজেকে আমরা আত্মা ভাবি, কিন্তু যখন কোনো কাজকর্মে ব্যবসা বাণিজ্যে থাকে তখন তার নিজেকে আত্মা ভাবতে পারি না। तो बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। बाबा বলছেন সহজ করে দিচ্ছেন कि সেই মুহূর্তে যদি তুমি নিজেকে আত্মা নাও ভাবতে পারো তো শিব বাবাকে স্মরণ করো। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ। বলছে হাতে কাজ করো কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা ভাবো যে আমি আত্মা এই শরীর দ্বারা কাজ করছি। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। यह है मेहनत, इसमें बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह सुख नहीं है। বলছে যতই ধনী হোক, তার কাছে কোটি 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 টাকা হোক, কিন্তু বলছে কারো কাছে এখন মানসিক সুখ নেই। सबके सिर पर दुख है, सबाई दुखी। बड़े बड़े राजाएं प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं। কত বড় বড় মিনিস্টারদের প্রেসিডেন্টকে মেরে দিচ্ছে। विलायत में क्या क्या होता रहता है, साहूकारों पर राजाओं पर तो और मुसीबत है। বলছে যারা বড় বড় ধনী বা যারা বড় বড় ভিআইপি বা রাজা গজা তাদের উপরে আরও বেশি এখন মুসিবত, মানে তাদের উপরে বেশি মানুষের কুদৃষ্টি। यहाँ भी जो राजाएं थे वह प्रजा बन गए हैं। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। বলছে কলিযুগে রাজাদের উপরে প্রজাদের রাজ্য এসে গেছে। तो ड्रामा में ऐसे नोंद है, पिछाड़ी में ही यह हाल होता है।
সেটা সব কলিযুগের শেষের ঘটনা। তো बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे, তাই বলা হয় না যে কলিযুগে সব দিকে অধর্ম দাঁড়িয়ে আছে, অধর্ম কাজ করাচ্ছে। तो तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज्य लेते हो। বাবা বলছে দুনিয়া জানতেই পারছে না, আর তোমরা খুব গুপ্ত বেশে, গুপ্ত রূপে, খুব সাচ্চা দিল থেকে বাবার প্রেমে ভরপুর হয়ে তোমরা পুরুষার্থ করে নিজের হারানো রাজ্যটা ফিরে নিচ্ছ। तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखला न सके। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। अच्छे कोनो मानुष के बाप, टीचर, गुरु बोला जावे ना। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। अच्छे 21 जन्म तुम्हें विश्राम पावे, तो तार जन्य एखन पवित्र होते हबे। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था, तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो ना, जमुना का कंठा था, जिसको परिस्तान भी कहते थे। বলছে নতুন দুনিয়ায় নতুন ভারত এবং আমাদের এই দিল্লি হবে ভারতবর্ষের রাজধানী, যমুনার তীরে, যেটাকে परिस्तान बोला है। सेखाने राधे कृष्णेर महल हबे। तो वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, आत्मा पवित्र बन जाती है, तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। बाबा আমাদেরকে এখন খুব সুন্দর বানাচ্ছেন। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। বলছে যাচাই করতে থাকো যে আমার মধ্যে কোনো অবগুণ তো নেই। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। यह पढ़ाई है ऊंच ते ऊंच, पढ़ाने वाला भी है ऊंच ते ऊंच, शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। बाबा बोलছেন মানুষ ভাবে যে ভগবানই হচ্ছেন সৃষ্টির মালিক, কিন্তু বাবা বলছেন যে তোমরা হচ্ছ সৃষ্টির মালিক, আমি নয়। तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गंवाते हो, फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्कर लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गंवाई है।
हार और जीत का खेल है ना, यह रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। बाबा बोलছেন অন্য স্কুল কলেজে তো মানুষ মানুষকে পড়ায়, কিন্তু এখানে स्वयं भगवान তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। यह है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। বলছে 5000 বছর আগেও আমরা এই জ্ঞান শুনেছিলাম। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। बाबा बोलছেন পুরো 5000 বছরের এই কালচক্রের মধ্যে এমন কোনো সময় আসে না যে স্বয়ং ভগবান এসে তোমাদেরকে পড়াবে। সেটা একমাত্র এই সঙ্গম যুগেই এখন হচ্ছে। किसी को भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। मुझे दुनियाते केउ जाने ना जे भगवान की करे से पढ़ाच्छेन। तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। ये पढ़ा द्वारा राजधानी स्थापन होच्छे। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाय निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। और যে দুনিয়াতে এটাও কেউ জানে না যে ভগবান এসে কখনো রাজ সত্তা স্থাপন করবেন। তো বাবা এখন এসে সত্যযুগে রাজ সত্তা স্থাপন করছেন। बाकी सब विनाश हो जाना है। बाप कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी हथ कार डे दिल यार डे। বলছে শরীর নির্বাহের জন্য তোমাকে কর্ম করতে হবে, কিন্তু হাত দ্বারা কাজ করো আর মন দ্বারা বাবাকে স্মরণ করো। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक दिखाते हैं। ठक्का करने से खजाना निकल आया। बाबा बोलছেন যে একটা গল্প আছে আল্লাহ আউয়াল দিন, তো সেখানে একটা প্রদীপ আছে, তাকে ঘষে দিলেই সে চলে আসে। तो अभी तुम जानते हो अल्लाह तुमको ठक्का करने से क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से बैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थीं, फिर आपे ही चली जाती थीं ध्यान में। बाबा बोलছেন आगे शिव बाबा खूब साक्षात्कार करातें। যেমন আল্লাহ আউয়াল দিনে দেখানো হয় না যে একটু চিরাগটাকে ঘষে দিলেই আউয়াল দিন চলে আসতেন, তো সেরকম বাবা বলছেন যে বাবার দৃষ্টি পেয়ে অনেক বোনেরা সাক্ষাৎকারে চলে যেত। বাবার দৃষ্টিতে জাদু ছিল, বাবার দৃষ্টি পড়লেই সত্যযুগে সব সাক্ষাৎকার করতে শুরু করে দিত। तो आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थीं, फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में। फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। तो आगे बाबा बोलছেন সবাই ভাবতো যে বাবা কোনো জাদু করছে, তখন এটা पाठ बंद हो गया। तो यह सब बातें हैं इस समय की। বলছে এখনকারই সমস্ত গল্প।
हातम ताई की भी कहानी है। मुहलरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। हातम ताईर एकटा खेला जे ओनार मुखे एकटा किछु दिए दिले तखन माया चले जेत, तो मुहलरा निकालने से माया आ जाती है। रहस्य तो कोई समझ न सके। तो बाबा बोलছেন যে রহস্য হচ্ছে যে তুমি সবসময় মুখের মধ্যে বাবার ইয়াদের মুহলরা ঢেলে রাখো, তাহলে মায়া তোমার কাছে আসবে না। तो बाबा कहते बच्चे मुख में मुहलरा डाल दो, तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। जो तो আমরা শান্ত স্বধর্মে থাকবো তো माया আমাদের কাছে আসবে না। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। बाबा बोलছেন সত্য যুগে এটা জ্ঞান থাকবে যে আমরা আত্মা, দেহের মধ্যে আমি আত্মা, এই দেহকে ধারণ করে আছি, এই দেহকে ধারণ করে আমি আছি। तो बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। सत्य जुगे परमात्मार ज्ञान थाकबे ना, किंतु आत्मार ज्ञान थाकबे। कभी भी कोई पूछे बोलो वहाँ विकार का नाम नहीं है ही वाइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहाँ होते ही नहीं, देह अभिमान ही नहीं है। सत्य जुगे विकारेर कोनो नाम चिन्हई थाकबे ना, जेहेतु देह अभिमान नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं, वहाँ होते ही हैं मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से नष्ट मोहा होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। बाप की याद में रहते यह पुराना शरीर छोड़कर जाना है। और छे तुम्हाके बाबार यादे थाकते थाकते ये पूर्ण देह के छाड़ते हवे। सबका हिसाब किताब चुकता होना है, फिर चले जाएंगे घर। यह कल्प कल्प होता है, तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। और विज्ञानीरा কত দূর পর্যন্ত দেখছে যে সূর্যে কি আছে, চাঁদে কি আছে, তো অনেক উপরে অন্তরিক্ষে যাচ্ছে। তো বাবা বলছে তোমরা তো তার থেকে উপরে পরমধাম যাচ্ছ, কত দূর পর্যন্ত তোমাদের মন আর বুদ্ধি চলে যাচ্ছে। आगे समझते थे यह देवताएं हैं। মানুষ आगे सूर्य व चांद के देवता भावतो। तुम कहते हो यह तो मांडवे की बत्तियां हैं। और छे তোমরা জানো যেটা এটা বিশাল বড় মঞ্চের লাইট। পৃথিবী একটা বিশাল বড় অভিনয় মঞ্চ, তো অভিনয়ের সময় লাইট দরকার, তো বড় বড় লাইট সূর্য আর চাঁদ, দিনের জন্য সূর্য, রাতের জন্য চাঁদ। यहाँ खेल होता है तो यह बत्तियां भी यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह होती नहीं, वहाँ खेल ही नहीं है। यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय नहीं होती। বলছে পূর্ণ বিনাশ হয় না, কিছু অংশ থেকে যাবে, সেখান থেকে দেবী দেবতাদের জন্ম আরম্ভ হবে। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जलमयी होती नहीं। पशु पंछी आदि जो भी हैं सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वह सतयुग त्रेता में रहते नहीं। বলছেন যে সত্যযুগে পশু পাখিরাও থাকবে, কিন্তু তাদের প্রজাতি খুব নবীন হবে, সুন্দর হবে। তো সত্যযুগ ত্রেতাতে এখন যে অন্য অন্য দেশগুলো আছে, 5টা মহাদেশ আছে না, তো ভারতবর্ষ ছাড়া আর অন্য কিছু থাকবে না। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। তোমরা দিব্য দৃষ্টি দ্বারা যা কিছু সাক্ষাৎকার করেছো আবার সেটা প্র্যাকটিক্যালে দেখবে। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे,
जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो, फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं ना, हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है। बाबा बोलছেন যে লৌকিক দুনিয়াতেও মানুষ নিজের মা বাবাকে স্মরণ করে। কারো যদি বাবা দেহ রাখে তো সন্তানরা বাবার কত মহিমা করে যে আমার বাবা এই ছিলেন, আমার বাবা এটা ছিলেন। তো সেরকম বাবা বলছে তোমারও শিব বাবার সঙ্গে কত ভালোবাসা থাকা দরকার। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहाँ रूहों का सिजरा है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है। बाबा बोलছেন परम धामे যেমন আত্মাদের একটা নিরাকারী ঝাড়, নিরাকারী বৃক্ষ আছে, সেরকম এখানে এই স্থূল জগতে মানুষ সৃষ্টির ঝাড় আছে। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है, फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते हैं बच्चे नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो। বলছে যদি তুমি নর থেকে নারায়ণ হতে চাও তাহলে তোমার যে কথনি মানে যেটা মুখে বলছো সেটাই করো, বলা আর করা যেমন সমান হয়। पहले अपनी अवस्था को देखना है, নিজের अवस्थाকে देखो। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, यह तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। दापर जुगे अपवित्र राजारा সত্য যুগের পবিত্র রাজাদের মন্দির বানিয়ে তাদের পুজো করবেন। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है। बाबा बोलছেন যে माया भूलिए दे तुम्हारे, दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है, मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब टीचर्स। বলছে মুখ্য टीचर तो हमारे बाबा, बाकी तो सबाई निमित्त। तो बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। बाबा के यदि भूले जाओ तारे टीचर के मने करो, टीचर के यदि भूले जाओ ताले सद्गुरु के मने करो। तो जो तुम्हादेरके बाबा 3टे चांस दिए, एक भूले तो दूसरे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है। बाबा থেকে পুরো বর্ষা নেওয়ার জন্যে যেটা বলছো সেটাই করো, এটার উপরে বিশেষ পুরুষার্থ করতে হবে। मोह जीत बनना है। 2 नंबर, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं,
सब समय मने राखो जे आमरा शांतिर सागरेर सन्तान। हमें शांति में रहना है, मुख में मुहलरा डाल लेना है। बाबा बोलছেন मुखे मुहलरा भरे नाओ। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फालतू परनिंदा परचर्चा बा व्यर्थ कथा बोले निजेर समय नष्ट करो ना। साइलेंसे थाको, मुखे बाबार यादेर मुहलरा भरे निते हबे। आज का वरदान, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो। बाबा मधुबन निवासीদের বলছেন কি যেমন বাবার সিজন যখন আরম্ভ হয় তখন তার অনেক আগে থেকে সেবাধারীরা সমস্ত জিনিসপত্র জোগাড় করে রাখে যে বাবার বাচ্চারা আসলে তাদের কোনো রকম যেন অসুবিধা না হয় বা সময় ব্যর্থ না যায়। এই জন্য আগে থেকে সব কিছু ব্যবস্থা করে রাখে, জিনিসপত্র কিনে রাখে। তো বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন এইভাবেই যে বিনাশের সময় যখন খুব কাছাকাছি আসবে তখন সকল আত্মাদেরকে তোমাদেরকে গতি সদ্গতি দিতে হবে। তো তার জন্যে এখন থেকে এত স্টক জমা করে নাও যে সেই আত্মাদেরকে যাতে লাইনে না দাঁড়াতে হয়। তারা আসবে আর তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা, তোমাদের দুটো জ্ঞানের বরদানি बोल দ্বারা তারা যেন ভরপুর হয়ে চলে যায়। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। বলছেন পুরুষার্থী জীবন থেকেও এখন অনেক উঁচুতে দাতাপনের স্থিতিতে থাকো। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। प्रति संकल्पे प्रति सेकेंडे मास्टर दाता हुए चलो। आज का स्लोगन, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेंगी। बोलছেন যে बाबा मालिक हजूर के बुद्धिते सब समय सामने राखो যে আমার आगे पीछे सब ব্যাপারে बाबा আছে, তাহলে সকল প্রাপ্তিও তোমার কাছে জি হজুর করবে। ओम शांति।